Hello everyone. Today we will study fourth chapter of our book and the name is An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. First, let's get started from before you read. In 1997, an Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. A space shuttle is a spacecraft that is made for repeated space travel, unlike a rocket. For example, between Earth and a space station. स्पेस शटल एक स्पेस क्राफ्ट होता है जो स्पेस में ट्रेवल करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि पृथ्वी और स्पेस स्टेशन के बीच. यूज अ डिक्शनरी टू डू द टास्क बिलो. फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस. लुक अप द वर्ड्स अंडरलाइंड इन द फ्रेजेस. A. Naturalized US citizen. B. Space. C. Frontiers of space. D. Aboard. E. Lift off. How is it different from take off? F. Crew. Notice the spellings of these words in this lesson. Airplane, program. This is how these words are spelled in American English. How are they spelled in British English? A news reporter. Tragedy in space. US space shuttle Columbia breaks into flames. In an unprecedented space strategy. Unprecedented strategy का मतलब है जो कभी देखी ना गई हो, जो सुनी ना गई हो दुर्घटना जिस बारे में, उसको बोलते हैं. लाइक in an unprecedented space strategy, US space shuttle Columbia carrying India-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others. उस अंतरिक्ष यान में एक हमारी कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट थी और 6 दूसरे लोग थे. broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1st February 2003, killing all 7 on board. जब वो टेक्सास के उस लैंडिंग स्ट्रिप पे शनिवार को आ रहा था 1 फरवरी 2003 को, तो उस दौरान सारे के सारे जितने भी मेंबर्स थे, क्रू मेंबर्स, जो टीम थी पूरी 7 लोगों की, वो सारे खत्म हो गए. The shuttle lost contact with NASA at about 9 a.m. as it came in for landing. जैसे वो लैंडिंग की तरफ आ रहा था होने के लिए, उस शटल का अंतरिक्ष यान का कांटेक्ट खराब हो गया नासा के साथ. It was flying at an altitude 2 lakh feet and traveling at over 20,000 km per hour when ground control lost contact with the shuttle. वह 2 लाख फीट की ऊंचाई में था और ट्रेवल कर रहा था 20,000 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, और वो अपना लॉस्ट खो देता है नासा के साथ कांटेक्ट. एंड देन कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑन 16th January 2003. कोलंबिया जो अंतरिक्ष यान होता है वो यहाँ से 16 जनवरी 2003 को उड़ान भरता है फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लोरिडा के. इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 days and the 7-member crew conducted 80 experiments before it began
its downward journey, which ended in tragedy. This was Columbia's 28th space flight, and the shuttle was said to be good for 100 flights. जो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, 80 एक्सपेरिमेंट्स किए आने से पहले इस जर्नी में, और वो 16 दिन वहां पे रहे, और विच एंडेड इन ट्रेजेडी, जो कि ट्रेजेडी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और ये कोलंबिया का 28वां स्पेस फ्लाइट मिशन था, और ऐसा भी कहा जाता था कि वो 100 फ्लाइट्स और भी कर सकता था, उसके लिए वो ठीक ठाक था। अब आगे देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम अपना। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. कल्पना चावला कहती हैं, उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि वह कभी अंतरिक्ष की सीमाएं पार करेंगी। It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. यह इतना काफ़ी था कि उनके माता पिता ने उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए अलाउ किया उनके टैगोर स्कूल के बाद। आफ्टर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट अ ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, शी वेंट फ्रॉम for a master's degree to the United States of America. She later earned her PhD in aerospace engineering. अपनी बैचलर डिग्री यानी कि उन्होंने अपनी डिग्री एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद कल्पना ने अपने माता पिता के विरोध के बाद भी वह मास्टर्स डिग्री करने गई, अमेरिका गई और उन्होंने वहां से बाद में उन्होंने वहां से पीएचडी भी करी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट कैपे कैनेवरल, फ्लोरिडा, and participated in a successful mission in space. कल्पना चावला पहली भारतीय अमेरिकी महिला थी जिन्होंने उड़ान भरी थी। ब्लास्ट ऑफ मीन्स उड़ान भरना। वह एक ऐसी महिला थी जिन्होंने पहली बार उड़ान भरी थी फ्लोरिडा के कैप कार्निवल से, उन्होंने भाग लिया एक सक्सेसफुल स्पेस मिशन में। उसके बाद हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। जैसे कि मैंने आपको बताया, लिफ्ट ऑफ का मीनिंग होता है उड़ान भरना, किसी रॉकेट का या एयर स्पेसक्राफ्ट का उड़ना। तो उनकी फैमिली और उनका स्टाफ कैनेडी स्पेस से उनके लिए चीयर अप करता है, जैसे जब वो देख रहे होते हैं कि कोलंबिया उड़ान भर रहा है, वो जा रहा होता है ऊपर की तरफ। कल्पना was born in करनाल, हरियाणा। born means जन्म लेना। कल्पना ने का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ, बट was a naturalized US citizen, married to flight instructor Jean Pierre Harrison. Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multiple engine land airplanes, single engine seaplanes and gliders. उन्होंने हरियाणा में, उनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ। वह यूएस की नागरिक भी थी। उनकी शादी जीन परेर हैरिसन के साथ हुई, जो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे। इन सभी के अतिरिक्त, बिसाइड मीन्स इन सभी के अतिरिक्त, वो एक एस्ट्रोनॉट होने के अतिरिक्त
उनके पास लाइसेंस था कि वह फ्लाई उड़ा सकती हैं मल्टीपल इंजन लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स और ग्लाइडर्स। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। वह एक क्वालिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। उन्होंने पायलट बनने के बाद उन्होंने दूसरे चैलेंजेस को अपनाना चाहा, उन्हें ट्राई करना चाहा। एंड उन्होंने क्या किया? अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। उन्होंने नासा के अंतरिक्ष यान प्रोग्राम में अप्लाई किया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। सबसे पहले उन्हें सिलेक्ट किया गया एज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन नासा में। इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। 1994 में उन्हें सिलेक्ट किया गया नासा में ट्रेनिंग के एज अ ट्रेनर एज एन एस्ट्रोनॉट। व्हेन उन्हें ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए तैयार किया गया, व्हेन आस्क्ड what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else। जब उनसे यह क्वेश्चन पूछा गया कि वुमन के तौर पर आप इस फील्ड में कैसे पाती हैं, क्या अपने आप को कैसे पाती हैं और कैसे पहुंचती हैं यहाँ, तो वो सचमुच कहती हैं, आई नेवर, वह कहती हैं मैंने सचमुच ऐसा कभी नहीं सोचा था कि अपनी पढ़ाई के दौरान या कुछ और करते वक्त कि एक महिला या एक व्यक्ति यहाँ तक आ सकता है, ऐसा करने की सोच सकता है जो दूसरी कंट्री से हो। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स एंड आई फॉलोड देम। मैंने एक दूसरों की तरह खुद एक सपना देखा, मेरा सपना था जो मैंने सिर्फ उसको फॉलो किया। आई फॉलोड देम एंड पीपल हु वर अराउंड मी, जो पीपल मेरे आसपास के थे, उन्होंने और फॉर्चुनेटली ऑलवेज इंकरेज्ड मी एंड सेड इफ दैट इज व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने साहस दिया कि अगर तुम यह करना चाहती हो तो लगी रहो, कैरी ऑन। अब इसके बाद कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वाज 15 डेज। कल्पना का स्पेस मिशन जो अंतरिक्ष मिशन था कोलंबिया, वो 15 दिन का था, 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स लॉन्ग। 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट का था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 250 टाइम्स, ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। इस दौरान उन्होंने धरती के 252 चक्कर लगाए और ट्रेवल किया 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। द क्रू उनकी जो टीम थी, जो मेंबर्स थे, द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। उनके साथ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट और जापानीज एस्ट्रोनॉट्स भी थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metals and faster computer chips for all a price tag of about $56 million। उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स किए जिनमें से पॉलिनेटिंग प्लांट्स था, जो खाने की फूड की ग्रोथ को उन्होंने ऑब्जर्व करना था स्पेस में, और उन्होंने टेस्ट किए मेटल्स ताकि उन्हें और भी बेहतर बनाया जाए, कंप्यूटर चिप्स को और भी अच्छा बनाया जा सके, और दूसरे मेटल्स। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। जब शनिवार की रात यह न्यूज आई कि कोलंबिया डिजास्टर के कोलंबिया शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आती है, तो कोई बिलीव नहीं करता। एवरीवन वाज इन शॉक एंड दे वर जस्ट नॉट बिलीविंग। एंड
The town was Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived, and journalist wrote. अब जो करनाल था पूरा का पूरा वह पूरी रात जगता है और हजारों लोग जग के टीवी की तरफ देख रहे होते हैं, टीवी में अपने टीवी सेट की तरफ, और यही प्रार्थना कर रहे होते हैं कि कल्पना और उसके टीम मेंबर्स जो क्रू हैं किसी तरह वो जिंदा हों और स्वस्थ हों. अ जर्नलिस्ट रॉट, एक जर्नलिस्ट लिखता है, शी वॉज अ हीरोइन. इट टेक्स इनॉर्मस it takes enormous ability to become an astronaut. Enormous means बहुत ज्यादा, बहुत अधिक. वह एक हीरोइन थी और एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत अधिक योग्यता की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है. यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी to astrophysics to aeronautical engineering. एरोनॉटिक्स बनने के लिए आपको बहुत नॉलेज की, बहुत ज्ञान की ज़रूरत होती है, बायोलॉजी से एस्ट्रोफिजिक्स से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक सभी चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए. इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, सुपर मीन्स expert, super specialization means expert. In you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको एक्सपर्ट होना चाहिए और आपको विश्व भर की यानी कि बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए, encyclopedic knowledge. Her achievement is awe inspiring. कल्पना चावला की उनकी अचीवमेंट जो थी वो प्रेरणादायक और आदरणीय है. For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. वो सभी कल्पना चावला, वो लड़की जो एक छोटे गांव से होकर फ्रॉम ए स्मॉल टाउन आसमान को छूती है, आसमान तक पहुंचती है, वो एक इंस्पिरेशन थी सभी यंग इंडियंस के लिए. इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबॉर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़. चंडीगढ़ में वो स्टूडेंट्स को कहती हैं, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिट. हर सपने का रास्ता सक्सेस है. मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, परंतु तुम्हारे पास उसको कंप्लीट करने के लिए विजन होना चाहिए. द इंकरेज गेट ऑन टू इट, और साहस होना चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए. विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, वो उनको विश करती हैं ग्रेट जर्नी के लिए. देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फिलफिल देयर ड्रीम्स. आशा करती हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे सपनों को पूरा करने के लिए. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मैचिंग एंड वी आर गोइंग टू लर्न सम वर्ड मीनिंग्स. अनप्रेसिडेंटेड स्पेस स्ट्रेटजी. Unprecedented space tragedy means a sad incident of a kind that has never happened before in space. Certified flight instructor, I think for certified flight instructor will be a person with the correct qualification to teach people to fly planes. Space mission will be equal to grade, no. Let's see fourth one, super specialization. Super specialization will be great expertise in a limited field or a particular subject. Encyclopedic knowledge, it was the great knowledge.
means having knowledge of a wide variety of subjects. Awe-inspiring or aspiring means something that causes feelings of respect and wonder. And the seventh, in this age, it means now, in these times. Now, yes, this is very space mission, a set of jobs to be done in a space by a group. This was unprecedented strategy. Now, use these phrases in sentences of your own after finding out their meanings. Broke out. What is the meaning of broke out? Broke out means किसी चीज का टूट जाना या सेपरेट हो जाना. सॉरी, नॉट ब्रेक आउट, ब्रेक अपार्ट. ब्रेक अपार्ट मीन्स ब्रेकअप हो जाना किसी चीज का या सेपरेट हो जाना. अब लिफ्ट ऑफ का मतलब मैंने आपको बता ही दिया. लिफ्ट ऑफ का मतलब किसी स्पेस क्राफ्ट का उड़ना. चीयर्ड अलोंग, साथ में खुश होते हैं सभी लोग. एंड स्ट्रिक्ड ओवर मतलब कि पथ पे आ जाना या अपने रास्ते पे आ जाना. ब्लास्ट ऑफ मीन्स ब्लास्ट ऑफ का मीन्स भी उड़ना ही होगा स्पेसक्राफ्ट का. ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड का मतलब है कि सवार होना किसी चीज पे, इलेक्ट्रिकल चीज पे या रॉकेट पे, एयरप्लेन पे ऑन बोर्ड होता है वो. स्प्रेड अक्रॉस, किसी चीज का फैल जाना. स्प्रेड अक्रॉस, हर जगह फैल जाना. वेंट गॉन, वेंट तो एक सेकंड फॉर्म है गो की, तो इसका बेसिक फॉर्म होगा गो. एंड तो हम इसे पढ़ेंगे गो ऑन. गो ऑन को हम बोलते हैं हिंदी में जारी रखना, किसी काम को जारी रखना. एंड कैरी ऑन, कैरी ऑन और गो ऑन दोनों चीज सेम है, जारी रखना या लगे रहना. अब यहाँ पे देखते हैं. सी, वी एड अन टू मेक अपोजिट्स. फॉर एग्जाम्पल, ट्रू विल बिकम अनट्रू. हमें कोई वर्ड, हमें वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हम उसका अपोजिट बनाना है. अपोजिट कैसे बनेगा? सिर्फ यू एन ऐड करके वर्ड के स्टार्टिंग में. ऐड यू एन टू द वर्ड्स बिलो टू मेक देयर अपोजिट्स. देन लुक अप द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स यू हैव फॉर्म्ड इन द डिक्शनरी. देखिए, आइडेंटिफाइड तो हम आइडेंटिफाइड को यू एन लगा के अनआइडेंटिफाइड लिख देंगे. एजुकेटेड को अनएजुकेटेड लिखेंगे. इंटरेस्टिंग को अन इंटरेस्टिंग लिखेंगे. क्वालिफाइड विल बी अनक्वालिफाइड. ट्रेंड विल बी अनट्रेंड. आंसरेबल का मतलब जिस चीज को आंसर किया जा सके, तो उसका अपोजिट होगा अन आंसरेबल. अब यहाँ पे कंट्रोल, जिसको कंट्रोल किया जा सके जिस चीज को, तो उसका अपोजिट किया जाएगा जो कंट्रोल ना की जा सके, यानी कि अनकंट्रोल्ड. अटेंड मतलब कि अब इसका अपोजिट होगा अनअटेंड. अटेंड मिस होता है कि मौजूद होना, तो उसका अपोजिट होगा यानी कि absent. मौजूद ना होना तो अनअटेंड में लिख सकते हैं. सक्सेसफुल का सफल का असफल होगा अनसक्सेसफुल. अनसक्सेसफुल. एंड इम्पॉर्टेंट जो आवश्यक हो, तो कोई चीज आवश्यक है तो दूसरा अपोजिट क्या होगा? जो आवश्यक ना हो, तो लिखेंगे अन इम्पॉर्टेंट. एंड इसके बाद स्पीकिंग पार्ट है जो आपको खुद करना होगा. और राइटिंग पार्ट में आपको बता देता हूं मैं बी पार्ट. गिव बिलो आर सम वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड डिफरेंटली इन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश. फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंगली. हमें इनमें लेटर्स को पहचानना है और लिखना है कि कौन सा ब्रिटिश के तरीके से लिखा जाएगा, कौन अमेरिकन के तरीके से. तो देखते हैं. जो कलर है इसका मतलब रंग होता है, और अमेरिकन में इसकी स्पेलिंग क्या होगी? तो अमेरिकन में इसकी स्पेलिंग होंगे COLOR सिर्फ.
और लेबर की यानी कि जो लेबर होती है उसको ब्रिटिश लैंग्वेज में क्या कहेंगे, LABUR। इसकी स्पेलिंग ब्रिटिश में ये होगी LABOUR, सिर्फ यू का आंसर अंतर आ जाए। अब ट्रैवलर, जो ट्रैवल करता हो, यात्राएं करता हो, उसको ट्रैवलर बोलते हैं, तो इसकी स्पेलिंग ब्रिटिश में ट्रैवलर होगी, डबल एल आता है, इसमें एक एल आया है सिर्फ। अब काउंसलर, जो काउंसलिंग करता है उसको काउंसलर बोलते हैं, जो काउंसलिंग करवाता हो, तो इसकी स्पेलिंग होगी काउंसलर, सिर्फ एक एल इसमें भी आएगा। ठीक है। अब सेंटर, सेंटर किसी स्थान के लिए पॉइंट, निश्चित स्थान के लिए पॉइंट करने के लिए होता है, तो उसको हम सेंटर बोलते हैं। जैसे कि सेंटर, इसमें ब्रिटिश में हमने टी के बाद आर ई लगाया, मगर इसके अमेरिकन में हम CETER लिखते हैं सेंटर को। अब इसी तरीके से थिएटर है। थिएटर कौन सी जगह होती है, ये भी एक जगह होती है जहाँ पे ड्रामा किया जाता है या दिखाया जाता है। तो थिएटर की स्पेलिंग यहाँ पे RETRE, इस तरीके, ये है डिफरेंस। ब्रिटिश में TRE लगाया गया और अमेरिकन में TER। अब ऑर्गेनाइज यानी कि व्यवस्थित करना किसी चीज को, तो इसमें ऑर्गेनाइज में SE का यूज होगा ब्रिटिश के लिए, और जबकि अमेरिकन में IZE का। रिलाइज का, ये भी वही डिफरेंस है, इसमें ZE आ जाएगा, ZE। डिफेंस के लिए, डिफेंस यानी कि रक्षा से रिलेटेड वर्ड है ये, डिफेंस, NE। तो डिफरेंस क्या है, NCE यहाँ आया और यहाँ NAC। अब ऑफेंस, ऑफेंस यानी कि अपराध या अपराध रिलेटेड वर्ड है ये, तो ऑफेंस में SE आ जाएगा। जैसा कि इसमें डिफरेंस आया डिफेंस में, वही डिफरेंस SE और CE का ऑफेंस में आया है। तो आई थिंक हमने सारा चीज पढ़ लिया है। चलिए आज इस चैप्टर को यहीं छोड़ते हैं, आगे नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम, 5वां चैप्टर इस बुक का। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं एक बार भी कि नेचुरलाइज्ड US सिटीजन वो इसलिए थी क्योंकि उन्होंने वहां पे हैरिसन से मैरिज करी थी, इस वजह से वो नेचुरलाइज्ड US सिटीजन थी। स्पेस यानी कि अंतरिक्ष होता है इसका मतलब, और फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस यानी कि सीमाएं, अंतरिक्ष सीमाएं। और अबॉर्ड मीन्स जाना या सवार होना, और लिफ्ट ऑफ मीन्स, लिफ्ट ऑफ और टेक ऑफ में अंतर क्या है। लिफ्ट ऑफ तो हम स्पेस क्राफ्ट के उड़ने को कहते हैं, स्पेस क्राफ्ट की उड़ान को हम लिफ्ट ऑफ कहते हैं। अगर मैं कहूं कि टेक ऑफ, टेक ऑफ, टेक ऑफ एयरप्लेन उड़ान को कहते हैं। ठीक है। और क्रू मीन्स मैंने आपको बता ही दिया है, क्रू चैप्टर के बीच में, क्रू मीन्स अ कंपनी ऑफ पीपल who work for one job। ठीक, जो एक काम करने के लिए ग्रुप बनाया जाता है उसको हम क्रू बोलते हैं। तो आई थिंक हमने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे अपने 5th चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।